બધાને વાત સમજાય છે ને બધી? વિજ્ઞાન તો સમજવાનું છે બસ, ધેટ્સ ઇટ. જેટલું સમજાશે એટલું ઇઝી લાગશે. મેં ઘણા બધા સિદ્ધાંતો પહેલાં કયા છે, એના ઉપર જ બધી વાતો થતી હોય છે. જેમ મેં પહેલાં કીધું કે આધ્યાત્મ માર્ગમાં જેમ જેમ ઉપર જાઓ એમ લેબર ઓછું હોય. એ બધા જ આન્સરમાં આનું તમને પારાશીસી દેખાશે. એક કે એક વાતો જે આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સથી કરીએ છીએ એમાં લેબર જ ઘટતું જાય, અને જેટલો ધર્મ હોય એટલું લેબર મજૂરી વધતી જાય. મહેનત કરો તો પાપ પુણ્ય મળે, મહેનત કશું ના કરો તો મોક્ષ મળે, એવું છે. કારણ કે સંસાર એટલે પાપ પુણ્ય ને. મોક્ષ એટલે પાપે નહીં અને પુણ્ય નહીં, એનું નામ મોક્ષ. મોક્ષ એટલે કંઈ જ કરવાનું નહીં ને સંસાર એટલે બધું જ કરવાનું. એટલે બધાના કોન્સેપ્ટ જ અલગ છે. શું છે? પણ મોક્ષ એટલે બધું જેમ છે તેમ સમજવું, કરવું નહીં પણ સમજવું. એનું નામ મોક્ષ છે, મુક્તિનો માર્ગ. મુક્તિનો માર્ગ બ્લાઇન્ડ નથી, મુક્તિનો માર્ગ પ્રેક્ટિકલ છે. કેવો છે? પ્રેક્ટિકલ. અને ધર્મનો માર્ગ થિયોરિટિકલ છે. એટલે થિયોરિટિકલ માર્ગમાં કરવાનું હોય, આમાં કરવાનું ના હોય, જાણવાનું અને સમજવાનું હોય. અને એ જાણવું ને સમજવું એ એટલી મોટી શક્તિ છે કે જેમ જેમ તમને અનુભવ થશે એમ ખબર પડશે કે આ માણસ અણસમજણથી જ મજૂરી કરે છે. શું છે? સમજણમાં મજૂરી ના હોય, જરૂરિયાત હોય વ્યવહારની, પણ મજૂરી ના હોય. મારા વ્યવહાર જીવનમાં ખાવા માટે, પીવા માટે, ફેમિલી લાઈફ માટે પૈસાની જરૂર પડે, એ આપણે વ્યવહારથી માની શકીએ છીએ. ખ્યાલ આવી ગયો? અને એના માટે આપણે મહેનત કરવી પણ પડે, શારીરિક મહેનત. પણ જે મહેનત આપણે ધર્મ માટે કરીએ છીએ મુક્તિના આશયથી, એ સમજણ બરાબર નથી. મુક્તિ માટે તો જ્ઞાન અને દર્શનની જરૂર છે, લેબરની જરૂર નથી. અને તમે જુઓ કે આપણા મહાન પુરુષોએ સાધના કોને કીધી? હાથ પગ જોડી આંખો બંધ કરીને જોયા કરવું, સમજવા કરવું, એને સાધના કીધી છે. સમજાય છે? મહાવીર બી જંગલમાં ચાલ્યા ગયા, એને સાધના કીધી. સાધનાનો મતલબ કોઈ ક્રિયા કરવી તે નહીં. આ બધું કીધેલું, આ બધું જીવન આપણે જોયા છે, પણ આપણું ઓબ્ઝર્વેશન નથી. શું નથી? મેં એટલું બધું ઓબ્ઝર્વ કરતા જાઓ, ઘણી બધી વસ્તુઓ તમે ગ્રાસ્પ કરશો એનાલિસિસથી. ઓબ્ઝર્વેશન અને એનાલિસિસથી આ જોઈ શકાય એમ છે. પણ જે આપણે ટ્રેડિશનલ શબ્દો જે સાંભળવા, વાંચવા અને સમજવા ટેવાયેલા છે, એનાથી બિયોન્ડ જવું પડે આપણે. શું છે? લૌકિક જગત જુદું કે, કારણ કે લૌકિક જગત એ રિલેટિવ સત્ય ઉપર આધારિત છે, અને એની અંદર માસ ઓફ પીપલનો એક માહોલ છે. શું છે? એટલે તમે એ વાતાવરણમાં જશો તો સ્વાભાવિક જ છે કે એનો પ્રભાવ આ વગર રહેવાનો નથી. તમારે એનાથી બિયોન્ડ જવું પડશે. સમજાય છે? એનાથી તમારે બિયોન્ડ જવું પડે. એટલે તો તમને ખબર પડશે. એટલે એવી રીતે આ આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન છે એ ખરેખર તમારા પુરુષાર્થને બિલકુલ પ્રેક્ટિકલ બનાવે છે. કેવું બનાવે છે? થિયોરિટિકલ પણ નહીં અને મિકેનિકલ પણ નહીં. એટલે તમે દરેક અવસ્થાને જ્ઞાન અને દર્શનના ઉપયોગથી ઓબ્ઝર્વ કરો, એનાલિસિસ કરો અને રિયલાઇઝ કરો. નહીં કે મિકેનિકલ બસ ગમે તે થાય તો વ્યવસ્થિત છે, એવું નહીં. એમાં આપણે કુદરતી રચના કહીએ કે કુદરતી રચના મિકેનિકલ નથી. કુદરતી રચના તમને સમજાવું છું, પણ સામે સમજાવ્યું છે કે કુદરત અને કુદરતી કાનૂન પછી કુદરતી રચના આવે છે. એટલે રેન્ડમ નથી. ઇટ નોટ લાઈક અ વર્ડ. આ આખી પ્રોસેસ છે. કોઈ પણ કુદરતી રચના કુદરત અને કુદરતી કાનૂન વગર ના હોઈ શકે. પણ દર વખતે હું કે ત્રણ શબ્દ બોલવું એ જરૂરી નથી, તમારે સમજવાનું. પણ આપણું જે કુદરતી રચના શબ્દ છે મિકેનિકલ નથી, બિલકુલ પ્રેક્ટિકલ છે. પણ એ તમને પછી
દ્રષ્ટિ તમે કઈ રીતે ઉપયોગ કરો છો એના ઉપર આધાર. તમે માત્ર મિકેનિકલ કરી નાખો તો પછી એમાં અમે શું કરીએ? પણ મિકેનિકલ છે એટલે આપણે પૂરું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપ્યું છે. જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાને તો વ્યવસ્થિત કીધું, પણ વ્યવસ્થિતનું એપ્લિકેશન કઈ રીતે સમજવાનું એ નથી કીધું કે ગમે તે થાય બસ વ્યવસ્થિત છે બધું, આપણા હાથમાં નથી. અને બની ગયા પછી એને વ્યવસ્થિત તરીકે તમે કહી શકો, પણ એ વ્યવસ્થિત શક્તિનું એપ્લિકેશન આ કુદરતમાં કઈ રીતે છે એનું એક્સપ્લેનેશન ના નીકળે, જેને કારણે લોકોને સાયન્ટિફિક ખબર પડવી જોઈએ તે નહીં પડી. એટલે પછી આપણે ત્રણેય વસ્તુ શું કરી? અલગ કરી કે કુદરત સમજો, કુદરતી કાનૂન સમજો અને એનાથી બનેલી અવસ્થાને કુદરતી રચના સમજો. આનું એક નામ તમારે વ્યવસ્થિત કેવું હોય તો કહી શકો છો. પણ એટલે વ્યવસ્થિત એક સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ છે, એક રેડીમેડ આન્સર નથી. એમ આજે આપણે જે વાત કરી કે ભાઈ આટલા વર્ષોથી તમે ધર્મની અંદર આ બધા શબ્દો સાંભળો છો, આર્થ ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન, ધર્મ ધ્યાન, શુક્લ ધ્યાન, तो बधाने एम के धर्म ध्यान એટલે धार्मिक क्रिया. आम लोगों को मालूम ही नहीं है कि आखिर आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो भगवान महावीर ने 4 ध्यान बताए, ये ध्यान वो अंदर की दशा है, बाहर की क्रिया नहीं है. हम कहेंगे आरती करेंगे वो धर्म ध्यान है, पूजा करेंगे वो धर्म ध्यान नहीं है, वो धार्मिक क्रिया है. धर्म ध्यान वो दशा है, वो क्रिया नहीं है. आप समझे? कोई भी क्रिया के अंदर आप धर्म ध्यान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, यानी आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान को मोड़ना उसका नाम है धर्म ध्यान. हम क्या समझते हैं? धार्मिक क्रिया करना उसका नाम है धर्म ध्यान. वो शुभाशुभ है, वो पुण्य का उपार्जन करने का मार्ग है. पुण्य. धर्म ध्यान का मतलब होता है आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान को खत्म करना, और आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान को खत्म करने का मतलब है कि हर अवस्था को कुदरती रचना देखना. तो ये धर्म ध्यान का मतलब होता है अज्ञान को नाश करना. क्या बताया? ये धर्म ध्यान है. अज्ञान नहीं रहेगा तो आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान होगा ही नहीं. तो ये धर्म ध्यान है. और इसीलिए ध्यान शब्द है वो क्रिया शब्द, मगर हमने ध्यान तो बोलते तो ध्यान है, धर्म ध्यान, मगर मानते हैं धार्मिक क्रिया. यही होता है क्योंकि मालूम ही नहीं है. हमारा विजन साइंटिफिक नहीं है, थियोरिटिकल है, और आज तक उसी घरेड़ से हम जी रहे थे. और इसीलिए कोई बात को विज्ञान की दृष्टि से हम सोचने का प्रयास ही नहीं किया. और यही हमारी जो कमजोरी है, और यही हमारी जो कमजोरी है, ये कमजोरी जो होती है वो कमजोरी की वजह से हम ये विज्ञान को समझ नहीं पाए. वास्तव में साइंटिफिक विजन मुक्ति के मार्ग में होना चाहिए. ये साफ दृष्टि धर्मगुरुओं ने अपने जीवन काल दरमियान अपने फॉलोअर्स को या डिसाइपल्स को बताया ही नहीं. सभी धर्मगुरुओं ने अपने 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 धर्म का जो फॉलोअप था वही बताया कि आप इसको फॉलो करो और इस सबको फॉलो करवाओ. इसके आगे जो साइंटिफिक विजन था उसकी बात ही नहीं हुई. हालांकि अगर फॉलोअर्स को नहीं बताना है तो ठीक है, डिसाइपल्स को तो बताना चाहिए पहले, नहीं तो परंपरा ही गलत होगी. परंपरा ही गलत होगी. शिष्य को बताना चाहिए, भले अनुयायियों को न बताए. जय सच्चिदानंद स्वामी जी. आपने जो क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन की आर्थ ध्यान, धर्म ध्यान, रौद्र ध्यान और शुक्ल ध्यान की, आपने जो उसको विजन का प्रश्न बताया, तो एक
उससे एक क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गई। नहीं तो पहले क्या होता था, ये ध्यान के साथ में क्रोध, मान, माया, लोभ, वो शब्द भी जुड़े रहते थे। और उससे क्या होता था कि ये जो चारों शब्द से लोग इतने लोडेड रहते थे, व्यवहार में तो जो लेके आए वो निकलने वाला ही है, उसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ये शब्द जब उसके ध्यान के साथ रिलेटेड थे नहीं, वो जब पता नहीं था तो डिमार्केशन नहीं पढ़ पाता था। तो ये इम्पोर्टेंस क्रोध, मान, माया, लोभ का ही रहता था। जबकि जब पुरुषार्थ में आपके पास प्रॉपर विजन है तो फिर ये इसका इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं, उसका बेस निकल गया पूरा, और लोग को सही में एक पूरा विजन में मुक्तता की फ्रीडम मिली। तो ये क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन इससे बहुत ही क्लियर हुआ। और इसीलिए कहा न कि जैसे जैसे अगर धार्मिक क्रिया ही धर्म ध्यान है, ऐसा होता है, तो साधु को फिर पूजा और आरती की क्यों मना किया? जैन साधु आरती नहीं करते और पूजा नहीं करते, क्यों? अगर वो धर्म ध्यान है तो करना ही चाहिए उनको। तो ये मुक्ति का मार्ग ही नहीं था, पाप पुण्य का मार्ग था। मगर ये क्लैरिफिकेशन नहीं किया। क्या नहीं किया? आप समझे? हर बात में टैली तो होता ही है, मगर लोग इसको प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए। आपने अभी जो बताया कि कुदरती रचना, कुदरत और कुदरती कानून कोई लक्ष्य में रख के फिर उसे देखना है, तो आप एक दो इलस्ट्रेशन के साथ समझाइए कि ये कैसे देखनी चाहिए। कोई भी मतलब 2-3 इलस्ट्रेशन अलग अलग दीजिए तो हमको पता चलेगा कि जीवन में कैसे उसका उपयोग होता है। कोई भी अवस्था होती है, वो अवस्था को कुदरती रचना का देखने का पहला मतलब है, ये अवस्था हमने बनाई नहीं है, फर्स्ट कुदरत ने बनाई। उसका मतलब कुदरती रचना। अभी कुदरत कैसे बनाती है? ये संजोग कुदरत ने कैसे बनाया? तो कि 6 तत्वों की सहाय से बनाया। कोई भी अवस्था जन्म से मौत तक की 6 तत्वों के अलावा होती नहीं है। वो मैंने पहला सिद्ध कर दिया है, तो वो दूसरी बार दोबारा सिद्ध नहीं करूंगा। तो पहले कुदरत तो आ गया, 6 तत्व मतलब। अब ये 6 तत्व की अवस्था कैसे बनेगी? उसके लिए कुदरती कानून के बिना अवस्था के 6 तत्व तो है, मगर कानून के बिना काम कैसे करेगा? समझ में आया? तो कुदरत और कुदरती कानून से जो अवस्था बनती है, इसको कहते हैं कुदरती रचना। तो हमको कुदरती रचना ही देखना है, मालूम होना चाहिए कुदरत और कुदरती कानून से बनी है, बस। यानी कोई इसका क्रिएटर नहीं है। यानी हम कोई भी क्रिया में कर्ता भाव हमारा और सामने वाले के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी अवस्था के अंदर मन वचन का या साधनों का हम या दूसरे व्यक्ति का मालिकी भाव नहीं होना चाहिए। कुदरती रचना का मतलब न मालिकी है न करता है, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, कुदरती रचना देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया क्या? नहीं। कुदरती रचना का मतलब क्या हुआ? जो भी होता है क्या होता है? सही होता है। नहीं, सही होता है नहीं, आप करने वाले नहीं हो। नहीं, आपके लिए उदय कर्म है, प्रॉफिट एंड लॉस वो आपका टाइटल है। कुदरत तो रिजल्ट देती है। आप कहते हैं प्रॉफिट और कुदरत कहते हैं मैं रिजल्ट देता हूं। तुम कहते हैं पाप और कुदरत रिजल्ट देती है, तुम कहते हो सुख और। ये तो तुम्हारा टाइटल है। कुदरत का टाइटल, कुदरत तो सिर्फ एग्जाम का। और इसीलिए जैन धर्म में जो 8 प्रकार के अघाती कर्म है, जो शरीर की अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है, उसमें वेदनीय कर्म बताया। क्या बताया? वेदनीय कर्म का मतलब क्या है? सफरिंग। अभी सफरिंग में अच्छा बुरा वो तो तुम्हारा टाइटल है, सुख दुख तुम्हारा टाइटल है, प्रॉफिट लॉस तुम्हारा टाइटल है। कुदरत का है, कुदरत तो एग्जाम के रिजल्ट देते हैं, टाइटल आप लगाते हैं। और टाइटल के आधार से आपका कंफ्यूजन है। जब भी हम ये कुदरती कानून से देखेंगे
उस समय समझ में आना चाहिए कि कुदरत और कुदरती कानून इसमें आ गए कुदरती रचना में। और इसीलिए अवस्था को जब कुदरती रचना देख लिया, यानी आपका विजन इस दुनिया में ये अवस्था के लिए परफेक्ट था, और इसीलिए कुदरत ये अवस्था को आपने कुदरती रचना देख लिया, मीन्स आप कुदरत की एग्जाम में पास हो गए। नो ब्लेम, नो क्लेम, नो गेन, नो लॉस। आप शून्य हो गए उस अवस्था में। क्या हो गए? शून्य। शून्य का मतलब प्रॉफिट भी नहीं और लॉस भी नहीं। तो रिजल्ट क्या मिलेगा बताइए ना? नेक्स्ट बर्थ में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और कुछ नहीं लेना है, वही तो मोक्ष है। लेना देना है, वह क्या है? वो संसार। सिंपल बात तो है। कि स्वामी जी जैसे उदाहरण के तरफ अपने ऑफिस में कुछ काम किसी को सौंपा, ठीक है, सामने वाले ने अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं किया, तो डिस्चार्ज में इरिटेशन आ जाता है। ठीक है कि इनको इतना समझाया, उसके बावजूद ये काम ढंग से नहीं हुआ, अपने पास टाइम शॉर्टेज है, इरिटेशन हो जाता है, क्रोध हो जाता है। तो वो जो डे टू डे लाइफ में जो ये टाइप के जो सिचुएशंस बनती है, तो उसमें ये कुदरती कानून सामने वाले को देख के अपना जो डिस्चार्ज में सब जो निकल रहा है, उसको कैसे हम उसको वो कर सकते हैं? डिटेलिंग में जाने का है नहीं, कुदरती रचना ही देखना है। आप जब डिटेलिंग में जाओगे, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही है, वो तो बराबर है, वो नहीं देखना है। पर जैसी कुदरती रचना हम लोग खाली बोल दी है, तो उसे ये आपने सही बताया कि उसमें देखना चाहिए कि भाई ये कुदरत है, कुदरती कानून के हिसाब से ऐसा। तो वो कैसे डे टू डे लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं? विजन में रखना है ना। एक फिजिकल क्रिया थोड़ी है, आपके विजन में रखना चाहिए कि कोई भी अवस्था 6 तत्व के बिना नहीं हो सकती है। ठीक है, अभी आपको 1 बार 2 बार 10 बार आपने समझ लिया, ठीक है, फिर आप लाख बार देखेंगे तो फिर 6 तत्व से बार होगा, तो हर बार बोलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, कन्फर्म हो गया है। फिर तो विजन में रहेगा ना कि ये अवस्था 6 तत्व से बाहर नहीं है। आप 10 बार चेक कर लो, 20 बार चेक कर लो, फिर बाद में समझ में आ जाएगा कि बाकी की करोड़ों अवस्था भी क्या है, 6 तत्वों से ही है ना जी। तो बाकी सब जगह याद रखने की जरूरत है, विजन में रहना चाहिए कि ये अवस्था 6 तत्वों से बनी है, दैट्स इट। 6 तत्वों से बनी है और सामने वाला कुछ करता नहीं है, हमारे उदय कर्म 6 तत्व है और दूसरा कुदरती कानून आ गया, फिर सामने वाला और हमारा बात ही नहीं रहा है ना। नो डिविजन एट ऑल। एक सामटा 50 व्यक्ति करता है तो भी कुदरती रचना है, और 2 करता है तो भी, और अकेला करता है तो भी कुदरती रचना है। उसमें संख्या का प्रश्न ही नहीं है। ये मनवचन काया भी कुदरती रचना है। अगर ये मनवचन 2 व्यक्ति के साथ काम करता है तो भी कुदरती रचना, 100 व्यक्ति के साथ करता है तो भी कुदरती रचना। कुदरती रचना में तो कॉमन हो गया है, इसमें संख्या का शब्द नहीं है। ये शरीर बिल्कुल सो गया है और अंदर सपना देखता है तो भी कुदरती रचना, उसमें कोई संख्या क्रिया का सब्जेक्ट जो कुछ भी होता है, रिलेटिव फॉर्म में जो कुछ भी होता है वो कुदरती रचना है। इसको भी कुदरती रचना, ये जो रिएक्ट किया वो भी, इसने जो किया वो भी कुदरती रचना, सामने वाले ने जो किया वो भी सब कुछ दोनों चीज साथ में देखना चाहिए। सब कुछ कुदरती रचना, यानी नो डिवीजन। मैंने कहा ना, हमारा तुम्हारा ऐसा देखने की जरूरत नहीं है। जो भी बना, चाहे सिंगल फॉर्म में बना वो भी कुदरती रचना, चाहे 2 व्यक्तियों से कोई अवस्था बनी वो भी कुदरती रचना, चाहे 10 व्यक्तियों से मिलकर अवस्था बनी वो भी कुदरती रचना, चाहे 100 व्यक्तियों से मिलकर अवस्था बनी वो भी कुदरती रचना। कुदरती रचना का मतलब संख्या का इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी जिस समय जहाँ हुआ वो क्या है, कुदरती रचना। इसमें कोई डिवीजन बनाने की जरूरत नहीं है। और ये जो फाइल 1 को भोगवटा है वो भी कुदरती रचना है, उसमें कुछ आगे करने का जरूरत नहीं, यही कहना चाहते हैं। भोगवटा आया वो ही तो कुदरती रचना है, हमको क्या करना है? फिर हमने जो किया था कर्म उसी का तो फल आया, अभी क्या करना है? अभी तो हम सफर कर रहे हैं, हमारे पास चॉइस नहीं है। जब राम को वनवास जाना पड़ा तो क्या चॉइस थी?
चॉइस है ही नहीं तो। मगर ये संजोग आता है, उसको कैसे देखना ताकि अज्ञान खत्म हो जाए और विज्ञान का उपयोग हो के हमारा डेवलपमेंट आगे बढ़े। बस अज्ञान तो कर्म का फल तो कुदरत देगी ही, उसमें हमारा रोल नहीं है, मगर उसको देखते कैसे है वहाँ हमारा रोल है। अगर हमने उसको कुदरती रचना के रूप में अवस्था को देख लिया तो अज्ञान क्या हो गया? नाश हो गया और डेवलपमेंट अप हो गया। बस बाकी तो वो विसर्जन तो होने वाला ही था। अगर अज्ञान का उपयोग किया तो भी विसर्जन होगा। मैं ये बराबर समझा कि इसको भी कुदरती रचना देखी, इसने जो रिएक्शन ये अभी तक जो आप लोगों ने जिस प्रकार से जो सत्संग सुना है, वो सत्संग के अंदर ऐसा सुना है आपने कि जैसे मैंने कहा ना कि इस दुनिया में हम किसी के भी साथ व्यवहार करें, घर के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर, ट्रैवलिंग के अंदर, जिस व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार में आप सब लोगों को इस प्रकार से सिखाया गया है कि कोई भी संजोग में गलती खुद की ही देखना, दूसरे की देखना नहीं। और इसीलिए साइंस समझ में नहीं आया। धार्मिक दृष्टि से यू आर राइट, पर ये आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। जो किताब बाहर निकली है, निर्दोष दर्शन से निर्दोष दृष्टि, वो किताब रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। गलत नहीं है, रिलेटिव सत्य है। भाई मेरी प्रकृति कहो या दूसरे की प्रकृति को, सब कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना देखो या अपने को दोषित देखे, दूसरे को निर्दोष देखो, ये तो धार्मिक दृष्टि है। क्या है ये? तत्व दृष्टि नहीं है। तत्व दृष्टि में तो कोई भी प्रकृति है वो कुदरती रचना। नो डिवीजन। मैं बार बार कहता हूँ, डिवीजन की जरूरत नहीं है। यूनिक एंड सबके लिए इक्वल। क्या बताया? इक्वल। जितना भी आप डिवीजन बनाओगे फिर पजल खड़ा, फिर ये साइंस समझ में नहीं आएगा। और धर्म में यही बात तो है, डिवीजन, हर बात में डिवीजन। ये अच्छा है, ये बुरा, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसे पाप होगा, इसे पुण्य होगा, ये आपने किया वो सही है, ये आपने किया गलत है तो उसका पश्चाताप करो, ये आपको नहीं हो सकता है तो सत्य ही मांगो। ये सब रिलेटिव सत्य में इतना उलझा दिया कि आदमी को उसके ऊपर विज्ञान है वो समझने का मौका ही नहीं दिया, उसमें ही उलझा दिया। और फिर बाद में उसमें से बाहर निकलना आसान नहीं है। पूरी जिंदगी नहीं, हजारों अवतार खत्म हो जाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। आएगा ये कैसे? आपका विजन ही रिलेटिव सत्य का बना दिया। क्या बना दिया? तो फिर रिलेटिव सत्य में तो द्वंद्व रहेगा ही, और द्वंद्व रहेगा इसीलिए उसमें करता न करता वो तो रहेगा ही, और आप इसमें से कभी बाहर नहीं निकलोगे। और जब क्रिया की बात आएगी तो व्यू पॉइंट तो रहेगा, क्रिया की बात आएगी तो गलती भी रहेगी। हमारे चेन्नई में जो अड़ल ग्रुप है पूरा, तो मेरे फ्रेंड बहुत है उधर, तो वो बस हमारा वो निष्ठो दर्शन का है ना, वही खुद का ही दोष देखते रहो और डिप्रेशन आ जाए तो भले आ जाए, तो वो बस उसके बाहर निकलना ही नहीं चाहते। और मैं बताऊंगी तो बोला कि तुम भी गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हारा रास्ता अभी ठीक नहीं है, मत जाओ। घर पे आ जाएंगे बोलने, मत जाओ, मेरे को बुलाने भी आ जाएंगे कि चलो अपने वहाँ, क्यों रास्ता बदल दिया। ऐसा चल रहा है हमारा। और ग्रुप बहुत बड़ा है, 200-300 लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन वो मेरी बात तो मानना नहीं चाहते। इसमें क्या फर्क है? तो वही सिखाते, लेकिन रामकृष्ण को भी नहीं मानते थे उस जमाने में। जो खुद की गलती देखते रहो और डिप्रेस हो जाओ तो भी चलेगा, लेकिन देखते रहो। जब जिसके पास जड़ता है, जड़ता, इसमें फिर क्या है? जब प्रैक्टिकलिटी नहीं है तो फिर क्या करेंगे? ये सब जड़ता है, और बाकी जिसको जो करना है वो करे। સ્વામીજી આમાં કેવું થાય છે ને કે ભલે જેમાં બી એ લોકો જે રીતે હા हिंदी
ओ हाँ स्वामी जी, इसमें ऐसा होता है ना कि कोई गलत नहीं है। पहला तो बात यहाँ पर है, समझ में गलती हुई है। जहाँ भी समझाने वाले की भी कोई गलती नहीं होगी, जो समझते हैं ना वो लोग भी थोड़ा गलती समझते हैं। जहाँ अगर आप अच्छी तरह से किसी का भी सत्संग सुन लीजिए तो वो लोग तो समझा तो रहे हैं, लेकिन जो आज ये कुदरती रचना, कुदरत और ये कुदरत का कानून, ये जो तीन चीज आपने जो समझाई है ना अभी, वैसी बात किसी भी सत्संग में नहीं है। किसी भी सत्संग में आज तक मैंने जहाँ भी सत्संग शायद सुने भी है, बहुत जन के सुने, स्वामी नारायण के सुने, सबके सुने, बात तो प्रेजेंटेशन तो कर रहे हैं, सेम टू सेम ही आता है जो भी मैंने सुना। लेकिन ये जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से बोलते थे ना भगवान ने किया, वो लोग ऐसा बोलते हैं भगवान ने किया, और यहाँ बोलते हैं कि सव्यवस्थित, और अपने यहाँ जो व्यवस्थित को आपने जिस तरह से प्रेजेंट किया है ना, वो दुनिया का किसी भी लगता नहीं कि किसी सदगुरु ने या गुरु ने किया होगा। ऐसा आज तक का मैंने कहीं मुझे ऐसा ध्यान में नहीं आया। इसीलिए ये चीज इतनी सरल हो गई है। अगर इसको थोड़ा सा आगे ले जाने से ना, सब जो धर्म गुरु लोग अपनी कहीं भूल हो गई है ना, उसको वो खुद सुधार लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई गलती नहीं बताए है ना, दादा ने कहीं भी समझाया हो, कहीं गलती नहीं समझाई है। आप तो उनके साथ रहे हुए हैं, मुझसे भी ज्यादा जानते होंगे, लेकिन वो जो समझदारी में जहाँ गलती हो गई ना, वो गलती हो गई, उसको खाली सुधार लेना है। निर्दोष दर्शन से निर्दोष, बात तो सही है, बता दिया निर्दोष, दादा ने तो बता दिया एक शब्द में कि निर्दोष दर्शन, लेकिन किस तरह से वो डिटेलिंग किसी ने खोज की? एक बार खाली किताब पढ़ के कहीं से कहीं क्वेश्चन उठा लिया और क्वेश्चन पूछ लिया, ये नहीं होना चाहिए। पूरा किताब पढ़ो, उसको एनालिसिस करो, क्या कहना चाहते हैं, नहीं समझ में आता है तो पूछो, जिससे भी पूछो, लेकिन कोई समझाएगा। इस तरह से करते करते तो आगे आएगा। लेकिन ये जो आपने जो ये कुदरत और कुदरती कानून और कुदरती रचना को ऐसा समझा दिया कि अभी ऐसा फिट हो गया है सबको कि वो और नहीं निकलेगा कभी भी, और किसी भी किताब को उठा के पढ़ेगा ना, अब उसको यही चीज ध्यान में आ जाएगी, ये दिस इज राइट। ओके, तो अब थोड़ा आप भी बताइए इसके ऊपर। तो एक्चुअली निज दोष दर्शन से निर्दोष दृष्टि की जो बात थी, वो एंगल क्या था और क्या एंगल प्रेजेंट हो गया है। मूल बात ये थी, निज दोष दर्शन मतलब अपने ज्ञान दर्शन की गलती। क्या बताया? एप्लीकेशन ऑफ योर ज्ञान दर्शन रॉन्ग। क्या बताया? आपका ज्ञान दर्शन का एप्लीकेशन रॉन्ग था, वो निज दोष था, और हमने वो ज्ञान दर्शन को एक्शन में ले लिया। हमारे ज्ञान दर्शन के मिस रिप्रेजेंटेशन से ये कर्म बना है। अभी उदय माया, अभी हमको ज्ञान दर्शन करेक्ट कर लेना है कि भाई मैं शुद्ध आत्मा हूं, यार कुदरती घटना खत्म हो गई। तो अभी रिजल्ट आया, वो पिछले अवतार का निज दोष था, आप समझे ना? तो वो अभी निज दोष था, वो अभी निर्दोष का नहीं था। वो दृष्टि से कैसे? ज्ञान दर्शन के उपयोग से इसको क्या करना है? निर्दोष यानी शुद्ध करना है, बस। उसमें मन वचन काय की अवस्था आती नहीं है। और इसीलिए तो मैंने कहा, लाखों लोगों की हिंसा करने वाले भी वही अवतार में मोक्ष में जाते हैं। फिर क्रिया की बात कहाँ आई? क्रिया सब आध्यात्म मार्ग में क्रिया सब्जेक्ट ही नहीं है। मगर मैंने कहा ना, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है डेवलपमेंट के आधार से, वो जब रिलेटिव सत्य की जो डिमार्केशन है वो ब्रेक नहीं करेगा तो साइंटिफिक विजन खुलेगा ही नहीं। ये साइंटिफिक शब्द नहीं है, क्या नहीं है? ये विजन है, ये शब्द नहीं, ये नॉलेज नहीं। मैंने पहले भी बार बार कहा है कि ये दृष्टि है और दृष्टि का उपयोग है, ये सिर्फ शब्दों का रिपीटेशन नहीं है। यहाँ कोई भी चीज रिचुअल्स के रूप में या चैंटिंग के रूप में नहीं बताया जाता है। यहाँ अवेयरनेस, उपयोग
एप्लीकेशन, एनालिसिस, रियलाइजेशन, ये शब्द होगा। या क्रिया की बात या क्रिया में मिस्टेक है वो भी बात नहीं होगी, और क्रिया बहुत अच्छा किया वो भी बात नहीं होगी, बात ही नहीं होगी। मगर लोग नहीं समझ पाए हैं ना, और इसीलिए मैंने कहा कि ज्ञानी पुरुष को यानी मुक्त पुरुष को, अनुभवी पुरुष को समझना अपनी बुद्धि से इतना आसान नहीं है। और इसीलिए आपको जब मैंने यही विज्ञान को एक सरल भाषा में पेश किया तभी आप सबको मालूम होगा वास्तव में ज्ञानी पुरुष ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि जब कोई भी बात को जब प्रेजेंट करते हैं, जैसे ज्ञानी पुरुष ने बताया कि ये जड़ है, जड़ शब्द बोला, आप तो मालूम मैकेनिकल है वो भी बोला, निश्चेतन चेतन भी बोला, मगर कैसे? तो जब मैंने आपको समझाया कि बिगिनिंग से एंड तक टोटली क्रिएटर, ऑपरेटर, ईश्वर कुदरती है, इट मीन्स फॉर यू इट इज अ मैकेनिकल, यू हैव नो एनी पावर टू कंट्रोल, यस और नो? जब आपका कंट्रोल नहीं है तो आपके लिए क्या है? मैकेनिकल। आपका कंट्रोल है तब कह सकते नहीं मैं ऐसा नहीं ऐसा भी कर सकता हूं, वो तो है नहीं, इसीलिए उसको बताया मैकेनिकल। तो ये एक्सप्लेनेशन की बात है, क्या है? और एक्सप्लेनेशन ऐसा होना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ पाए। समझ में आया? तो शब्द तो वही रहेगा मगर शब्द का जो प्रेजेंटेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और प्रेजेंटेशन अगर सही नहीं होगा तो लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि आपका लेवल तो हाई है, आप समझ जाओगे, सामान्य व्यक्ति कैसे समझेंगे? तो आपको उनके लेवल पर आके बात करनी पड़ती है। ये निजो दर्शन का आपने जैसे अभी बताया कि ज्ञान दर्शन के लेवल पे दोष हुआ है, ये तो हमने पूरी पारायण अटेंड की, इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं आई। क्रिया का ही निज क्रिया जो हम लोग ने की, उनकी बात छोड़ दो, कोई एक व्यक्तिगत वक्ता की बात नहीं करना चाहते, हम ये कहना चाहते हैं कि साइंटिफिक विजन ये होना चाहिए। अभी कितने कितने का नहीं है वो तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, जो वाणी में आया है निजो दर्शन उसमें ऐसी बात ही नहीं आई है। मैंने क्या कहा कि प्रेजेंटेशन जब पहले से ही रॉन्ग हो गया तो बाद में सभी स्लाइड्स कैसी आएगी? तो रॉन्ग ही आएगी। जब आपका एटीट्यूड मन वचन काया ही आपका सब्जेक्ट रहेगा, मन वचन काया, तो फिर जो भी बात निकलेगी कौन से कॉन्सेप्ट पे निकलेगी? मन वचन काया पे ही निकलेगी। जब आपका फोकस क्या था कि निर्दोष दर्शन मतलब मन वचन काया से कोई गलती, तो फिर जो भी उत्तर निकलेगा, जितना भी निकलेगा, वो कैसा निकलेगा? वही निकलेगा। इसमें दृष्टि की बात, ज्ञान दर्शन की बात आएगी ही नहीं। आप समझे नहीं? आपका फोकस ही नहीं है वहां, आपका फोकस केवल रिलेटिव सत्य के ऊपर है, और धर्मों के अंदर रिलेटिव सत्य में क्रिया को ही गलती माना जाता है। वो धार्मिक बात है, सामाजिक बात है, आध्यात्मिक बात है नहीं है। तो आध्यात्म में क्रिया का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने बार बार कहा है, जन्म से मौत तक मन वचन काया की कोई भी क्रिया के लिए कोई भी मनुष्य 100% जिम्मेदार नहीं है। ये कुदरत का कानून है, और इसीलिए फिर ये गलती सब्जेक्ट ही नहीं है। मगर हम समझेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? बार बार मैंने कहा है कि मन वचन काया की क्रिया, मन वचन काया की क्रिया जन्म से मौत तक है, वो कुदरती कानून के मुताबिक उसमें हम जिम्मेदार नहीं है। ठीक है? फिर आप कहोगे कि भाई मैंने तो गुस्सा कर दिया तो प्रायश्चित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने तो चोरी कर दिया तो प्रायश्चित करना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई जब मैंने कहा कि मन वचन काया की क्रिया जन्म से मौत तक कुदरती रचना है, फिर व्हाई यू गो डिटेलिंग? ये समझ में आया? जब मैंने पूरा होल पैकेज बता दिया फिर पर्टिकुलर पूछने का कोई मीनिंग ही नहीं है ना। मगर मीनिंग क्यों है? आपको अभ्यास हो गया, जो पुराना अभ्यास है ना, जो आपका कंठस्थ हो गया है
क्रिया करते करते करते, और क्रिया को करने से पहले समझते समझते पक्का हो गया, बाद में क्रिया को उस समझ को फॉलो करते करते समय और पक्का हो गया। अब उसमें से बाहर निकलना है, फिर तकलीफ हो जाती है। इतने मैकेनिकल हो गए। स्वामी जी एक जगह बताइए, स्वामी जी जे वस्तु जो चीज बताई है ना, वो बिल्कुल साइंटिफिकली बताई है। जहाँ भूल हुई है, समझने में भूल हो गई है। ये जैसे नित्य दर्शन के भाई ने बताया, जो हमने पढ़ा, सबने पढ़ा है, जिसने जिसने पढ़ा है सब जानते हैं, लेकिन हमारी कहाँ गलती है वो हमको जानना पड़ेगा कि हमने कहाँ मिस्टेक की। बताने वाले फिर से पढ़िए उसको, किताब को। अब आप फिर से पढ़िए, इनको बताइए, ये भाई को भी, कि आप फिर से उस किताब फिर से पढ़े, देखिए वहाँ कहाँ से क्या क्या चीज निकलती है साइंटिफिकली। उनका कहने का मतलब अलग है। हाँ, उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि दादा भगवान ने सही कहा या गलत कहा, क्योंकि वो देखा भी नहीं। उन्होंने अभी ये कहा कि दादा भगवान की बात जिसने कही और समझाई, दैट इज द क्वेश्चन। नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। दादा भगवान की बात मैं करता हूँ, ऐसे दादा भगवान की बात अन्य करते हैं, तो समझाने की बातें मेन व्यक्ति की बात नहीं है। आज आप तो मानी है, दादा भगवान ने बोल दिया, पर आज आपके गुरु जो समझाएगा वो तुम समझेंगे न, बोलते नहीं है। और वो तुम समझेंगे वही फॉलो करेंगे न, कि दादा भगवान में ज्ञान दर्शन था वो फॉलो करेंगे। सकता है कहीं अपनी भी तो गलती होगी समझने में, शायद वो समझाते ठीक ही होंगे। आप समझे नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये बात ही सिंपल है, बात ही सिंपल है। जब एक्सप्लेन करने वाला मन वचन काया के क्रिया के दोष को ही दोष मानते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, फिर आप कैसे इसको बार बार सपोर्ट करोगे, मेरे को ये समझ नहीं आता है। ये पूरी किताब की बात करता है, एक पन्ने की बात, एक सेंटेंस की बात नहीं करता है। वो कहता है पूरी किताब जो हमको समझाई, ये टाइटल के नीचे सब हर सत्संग में ये कहा गया कि मन वचन काया का जो भी गलती हो रहा है वो हमको खुद का ही देखना है, दूसरे को नहीं देखना है। जितने भी एग्जाम्पल दिए वो भी एक्शन के फॉर्म में ही दिए। अभी तुम कहते हैं कि नहीं अभी तुम्हारी गलती, उनकी गलती कहाँ से आएगी? जब समझाने वाले ने मन वचन काया की गलती को ही गलती माना है, बताया है और इसको फॉलो करने का कहा है, अभी वो क्या करेंगे तुम बताइए ना, वो क्या करेंगे? लेकिन उसकी भी खुद की थोड़ी ठीक है, whatever she is right। नहीं, उनकी बात नहीं करता हूं मैं। सबकी अभी यहाँ 25 व्यक्ति को जो सेम आंसर होगा। आज तक यहाँ बैठे हुए जो भी महात्मा है, ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल, अभी तक जो आपने दादा भगवान के ज्ञान देने के बाद किसी से भी लिया, वो सब्जेक्ट भूल जाओ, उनकी परंपरा में ज्ञान लेने के बाद आपने गलती मन वचन काया की क्रिया को माना था, अवस्था को माना था या दृष्टि को माना था? बताइए। अवस्था को माना था, दृष्टि को माना ही नहीं था। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल, नॉट ओनली 1% 2%। मे बी एक दो गलत हो, सब तो गलत नहीं हो सकता है ना। इट मीन्स द प्रेजेंटेशन इज नॉट करेक्ट। प्रश्न प्रेजेंटेशन का है। इंडिविजुअल सोच कब गलत हो सकती है कि जब सब समझ पाए और एक दो व्यक्ति नहीं समझ पाए तो हम समझे कि उनकी सोच सही नहीं है। अभी आप और 10 व्यक्तियों को पूछ लेना, ये तो बहन ने बताया, वो भी क्या कहा कि डिप्रेशन भले आ जाए, मगर अपनी दोस्त यही कहा है उन्होंने, मैंने तो नहीं कहा ना। अभी और पूछ लेना 10 व्यक्ति को, आप प्राइवेट ले, अभी नहीं, बाहर के व्यक्ति जो दादा भगवान की परंपरा में कंसर्न है उनकी बात करता हूँ मैं, बाहर के व्यक्ति की बात नहीं करूंगा। जिसको भी कहेंगे वही कहेंगे, नहीं अपनी गलती को ही देखना है, दूसरों की नहीं देखना है। स्वामी जी आज ही फोन आया था अलवर से इंदिरा जी का कि स्वामी जी ने प्रतिक्रमण के बारे में क्या बताया। प्रतिक्रमण का वो प्रश्न उठा था ना कि 50 साल के बाद ज्ञान मिला तो आगे का अज्ञान कैसे? तो आज क्या किया है? नहीं आज नहीं, 2 दिन के बाद, लेकिन आज मेरे को फोन आया था तो प्रतिक्रमण पे ही ज्यादा तक अटके हुए, इतना ज्ञान सुन के
तो मैंने सबका उत्तर दिया ही है, लास्ट में दिया ही है। 3 क्वेश्चन है स्वामी जी, जूम से आए हैं। बोलिए। दीपू बहन का क्वेश्चन है, दादा की आरती में अप ध्यान आता है तो कृपया उसको एग्जाम्पल से समझाइए। जैसे भगवान महावीर ने तो 4 ध्यान कहा है, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। मगर दादा भगवान ने कहा कि ये कलयुग में अप ध्यान होता है। ये एडिशनल वर्ड्स है उनका, दादा भगवान का खुद का है, ये शास्त्रों का शब्द नहीं है, मगर खुद ने उसको बना के बताया कि ये काल में ये ध्यान भी है, अप ध्यान। और वो अप ध्यान का एग्जाम्पल दिया। क्या दिया? अप ध्यान का मतलब होता है कि जैसे हम बिजनेस करते हैं और कपड़े का बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? ये दादा भगवान ने एग्जाम्पल दिया, वही बताता हूँ। हम कपड़े का बिजनेस करते हैं तो हम डुप्लीकेट माल बेच सकते हैं, ओरिजिनल बता के, स्टैम्प लगा के, या तो प्राइस भी ज़्यादा ले सकते हैं, 5, 10, 20, 25% ले सकते हैं। ये वहाँ तक तो अर्थ और रौद्र ध्यान है। मगर अप ध्यान का मतलब डुप्लीकेट भी बेचना, 25% प्रॉफिट भी लेना और फिर कपड़ा खींच के देना। नहीं समझ में आया? मीटर बताया 1, मगर खींचा छोड़ दिया तो 80 हो गया। मगर आपको कितना बताया खींच के? 1 मीटर। तो ये अप ध्यान दादा भगवान ने बताया है। दूसरी बात, ये जो करप्शन है वो भी अप ध्यान ही है, ये कलयुग के पैदाइश है। उस समय सतयुग में ये नहीं था, आप समझे नहीं? तो जो अभी के काल में जो पैदा हुआ है सब, ये सब अप ध्यान है, एडिशनल अर्थ रौद्र ध्यान से अलग है। और दादा भगवान एक एग्जाम्पल देते थे कि जो ज्ञान भगवान महावीर के पास नहीं था वो आज के बनिया के पास है। और वो मतलब व्यंग भाषा में बोलते थे, कहने का मतलब वो क्या कहता है, एक बनिया था, वैसे तो बनिया सिगारेट नहीं पीता, सिगारेट बीड़ी नहीं पीता है नॉर्मली। ये एग्जाम्पल दिया, हो सकता है गांव में पीते होंगे शायद। तो वो बनिया रोज प्रवचन में जाते थे और साधु भगवान के साथ बैठते थे, प्रवचन सुनते थे। मगर जैसे ही कोई बाहर से सुवास आएगी बीड़ी की तो वो उठ के खींचेगा इसको समझे ना, खींचेगा इसको, स्मेल, तो चला जाता। तो कुछ साधु ने एक बार पूछा कि तुम क्यों उठ के चले गए? बोला मेरे को बीड़ी पीने की आदत है और जैसे ही स्मेल आई तो मेरा मन वहाँ पीने के लिए खींच गया, तो मैं बाहर गया। तो फिर साधु भगवान ने कहा कि देखो ये बीड़ी पीना हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसमें अपने का जीव की हिंसा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पैसे के लिए बर्बादी है और परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ समझाया उसको। तो बनिया बोला चलो भी आपने समझाया तो अच्छी बात है, मगर क्या करूं, एकदम तो बंद नहीं होगी। तो बोला कितनी पीते हो रोज? तो बोला 5 पीता हूँ। कितनी? 5 बीड़ी। तो साधु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो एकदम तो बंद नहीं करो, पर अभी पूरे दिन में एक ही पीने की, जब भी प्यास लगे, तलब लगे तो फूंक लगा के फिर बंद कर देने की, फिर लगाओ, फूंक लगाओ, फिर बंद कर दो। अलग अलग समय पीने की जरूरत नहीं है। तो फिर बनिया तो बुद्धिशाली था, तो क्या करेंगे, बुद्धि है तो उपयोग तो करेगा ही और नियम तो पालना है। अभी क्या करेंगे, नियम भी पालना है और बुद्धि है तो उपयोग भी करना है, 2 करना है ना। तो उन्होंने बीड़ी का बीड़ा बना दिया। क्या बना दिया? बीड़ी इतनी आती है तो बीड़ा 1 फुट का बना दिया और पीता रहा पीता रहा। फिर 25% रहा। कितना? 25%। तो फिर पत्ते लगा दिए। नहीं समझ में आया। तो एक दिन नहीं, 1 महीने में खत्म नहीं होगा ये, बोलते नहीं है।
तो दादा भगवान ने कहा ये ज्ञान तो महावीर के ज्ञान में भी नहीं था। ये सब अप ध्यान है, अप ध्यान है, मिस यूज ऑफ योर लाइट। जो आपके पास बुद्धि है इसका दुरुपयोग करते हैं। ये आज करप्शन लेते हैं, मतलब क्या है? मिस यूज ऑफ योर नॉलेज। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, यू नो ओनली द वैल्यू ऑफ मनी। यू लूज योर कैरेक्टर, कैरेक्टर खत्म हो गया, ये डेवलपमेंट की निशानी नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है संयम जैन का है। स्वामी जी जय सच्चिदानंद, विज्ञान को समझने के बाद मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त हो, ये कैसे और कब कब भावना करनी चाहिए? आगे, जब हम शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का प्रयोग करते हैं तो क्या हमको अलग से ये भावना करनी है या उसमें ही ये आ जाता है? शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का उपयोग से मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग ही मिलेंगे, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। शुद्ध ज्ञान दर्शन का मतलब ही है मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक। अशुद्ध ज्ञान दर्शन का मतलब ही है संसार के लिए लायक और सहायक। उनका क्वेश्चन मगर जो हम भावना करते हैं या करवाते हैं कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, ये भावना करना और भावना की अवेयरनेस रखना, चैंटिंग नहीं करना है, अवेयरनेस। मतलब हम कोई भी अवस्था में, कोई भी परिस्थिति में संसार के लिए लायक और सहायक भाव न कर बैठे बाय मिस्टेक। तो ये जागृति में रखो। समझ में आया? That's it. उनका क्वेश्चन ये है कि जब हम शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें ही क्या ये मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक भाव हो जाते हैं, उसके लिए अलग से करना है या नहीं करना है? शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन जब उपयोग में होता है तो जरूर नहीं है, मगर शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन तो हर समय रहता नहीं है ना जी। ये बात है। तो सिंपल बात है ना। ज्ञानी पुरुष भी क्या कहेंगे, जब मेरी आज्ञा पालोगे तो आपका मोक्ष होगा, मगर नहीं पालोगे तो उसका तो उत्तर लेना पड़ेगा ना। इज इक्वल टू तो फिर कैसे बनेगा? तो प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है? इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो फिर क्या करना है? दैट इज द आंसर। अगर मेरा शुद्ध ज्ञान दर्शन रहता है तो और कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, मगर ये 100% सभी अवस्था में रहना आम व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक तो भाव कर सकते हैं ना। दैट्स इट। आगे छोटा क्वेश्चन है, मोक्ष मार्ग के लिए अलग से संयोग का डिटेल मीनिंग क्या है और हमें क्या विजुलाइज करना चाहिए? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक भाव हम करें जब, तब डिटेल पे हमको क्या विजुलाइज करना चाहिए जब हम ये भाव करें? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग का मतलब उनका रिजल्ट तो जिस प्रकार से अभी आता है वैसा ही कर्मों के मुताबिक आएगा। क्या बताया? वैसा ही आएगा, सेम, बट डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा? कैरेक्टर खुद का और अवस्थाओं को देखने की दृष्टि, और सेकंड सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस जो आपको मुक्ति के मार्ग में सहायक होंगे, अवरोधक नहीं होंगे। मगर माता भी होंगे, पिता भी होंगे, भाई भी होंगे, बहन भी होंगे, पति पत्नी भी होंगे, बच्चे भी होंगे, यही समाज रहेगा, यही परिवार रहेगा, यही अवस्था रहेगी। मगर अवस्था में कैटेगराइज डिफरेंस हो जाएगा। जैसे नहीं कहते मेरे घर में सब कुछ अनुकूलता है, मेरे को भी जहाँ भी जाना है तो जाता हूँ। आप समझे ना, कोई ना पैसे के लिए रिस्ट्रिक्शन है, ना आने जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए मेरे को आने जाने में दिक्कत नहीं है, तो उनकी सुविधा है। ये तो एक एंगल बताया। ऐसे मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक मतलब आपको ये सुविधा ऑटोमोड मिल जाएगी, पर सब्जेक्ट टू मोक्ष, नॉट सब्जेक्ट टू संसार। आप समझे ना, ये बात है। तो कहने का मतलब ये है। बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता के लास्ट अध्याय में है कि अर्जुन बोलते हैं कि नष्टा मोह स्मृति लगता है, तो वहाँ जो हम साइंस अप्लाई करें तो ये मन वचन काया की सभी अवस्था कुदरती रचना ही है, बोलिए। वही है ना।
और जब इतना महाभारत में रामायण में देखिए इतना लहू बहा और इतनी हिंसा हुई, फिर भी बोलते हैं कि राम मोक्ष में गए और यहाँ महाभारत में अर्जुन मोक्ष में गए। तो वहाँ भी मन वचन काया की कुदरत जो अवस्था है वो कुदरती रचना ही है, वही साइंस हमको अप्लाई करना चाहिए ना। नहीं, मोक्ष में गए वो प्रूव हो गया इनकी क्रिया का इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, मोक्ष में और होगा तो वो नर्क में जाते हैं। हाँ, ये तो है, लेकिन कभी कभी वो धार्मिक मानस इतना फोकस करता है, वो बताते हैं कि यार इतना लहू बहा तो कैसे मोक्ष जाएंगे, अगर तो वो काफ़ी है, हिंसा ही है। तभी तो हम कुदरती रचना ही मन वचन काया की अवस्था कुदरती रचना है, वो ही अप्लाई कर रहे हैं ना। तो बराबर है साइंस के मुताबिक। तो वही है ना। हाँ, दूसरा कुछ आगे क्या है? उसमें सब साइंस आ जाता है। कुदरत इतना कि आगे साइंस क्या है? हाँ ना, मीन्स के वही है कि और आपने सब डिटेल में बताया वैसे कैसे कुदरती रचना है। बस दुनिया के लोग जो मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, ये उनका एक रिलेटिव सत्य है। क्या है? और ये सनातन सत्य है, तो दोनों का लेवल तो अलग रहेगा ना। नोबडी इज रॉन्ग और राइट, बट उनके लेवल से वो करेक्ट है, क्योंकि उनको रिलेटिव सत्य की बात फॉलो करना है और उनको सब्जेक्ट टू संसार है। क्या है? मैं इसलिए प्रायश्चित करता हूँ क्योंकि मेरे को पाप की भुगतान नहीं करनी है, बोलते नहीं है। हाँ, ऐसा मानते हैं। और मैं अज्ञान नाश इसीलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को कर्म ही नहीं चाहिए। ये दोनों एंगल अलग है। हाँ, नहीं समझ में? हाँ, और इसलिए मैं अज्ञान का नाश करता हूँ। जिस अज्ञान से कर्म बनता है वही नाश कर देता हूँ। नहीं समझ में आया? हाँ, फिर पाप पुण्य कैसे बनेगा? नहीं, फिर पाप पुण्य कैसे बनेगा? When you are not apply मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन, तो पाप पुण्य कैसे बनेगा? क्रिया से तो बनता नहीं है। क्रिया से कर्म नहीं बनते। वो तो दादा भगवान ने बताया ना कि भाव से बनते हैं। हाँ, भाव से तो सब्जेक्ट कहा गया भाव के ऊपर। अभी भाव में ही अज्ञान नहीं है तो कर्म कैसे बनेंगे? नहीं। मगर भाव में ही अज्ञान है तो कर्म बनेंगे। अभी कौन सा कर्म हो? भाव में अज्ञान क्या है? ये गुनाह मैंने किया है तो अज्ञान नहीं है। माफी मेरे को मांगनी है, वो अज्ञान नहीं है। अपना नहीं। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना, वो हर रोज बोलते हैं। तो फिर मैंने गलती किया कैसे बोल सकते हैं? नहीं, दो बातें कैसे कर सकते हैं? या तो ये कहो कि मन वचन काया को चलाने वाला मैं हूँ और आपकी गलती है, तो एक्सेप्ट है। ये मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना भी है और गलती मैंने भी किया है। दो बात कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? एज अ थिंकर पीपल दो बातें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, इसीलिए तो आपने जो साइंस समझाया वो जब अप्लाई करते हैं तब क्लियर हो जाता है, लेकिन जिसको मालूम नहीं है जिसको, तो वो क्या प्रतिष्ठित आत्मा है, क्या मूल आत्मा है और क्या ये प्रकृति है, सब जब बोलिए स्वामी जी रिलेटेड संबंधी है प्रश्न। बोलिए। अपना मन वचन काया हिंदी अपना मन वचन काया भोगने का साधन है, मतलब वो भोगने का ही है। ये जो विचार है, विचार क्या है? विचार थॉट क्या है? थॉट शरीर में कहाँ पे इकट्ठे होते हैं? वो विचार लेके आते हैं कि उस जन्म में पैदा होते हैं कि विचार लेके आते हैं आदमी? वो विचार अपने शरीर में कहाँ पे जन्म मतलब इकट्ठे होते हैं? और विचारों को कम कर सकते हैं क्या? जो लाए हैं उसको कम कर सकते हैं कि भुगतने का ही है? दूसरा, एक ही सिचुएशन में दो आदमी है, वो अपने विचार उसको पॉजिटिव विचार आते हैं, किसी को नेगेटिव विचार आते हैं, वो किस कारण? और विचार कैसे पैदा होते हैं? विचार को कम करना हो तो कैसे कर सकते हैं? ये मेरा प्रश्न है। सबसे पहली बात ये है कि विचार हमारे हाथ में है ही नहीं, और इसीलिए हमको नहीं करना है तो भी आएगा नहीं। अगर हमको नहीं करना है तो क्यों आता है?
बोलते नहीं आते हैं वो नहीं, मेरा प्रश्न का उत्तर दो। हमको नहीं करना है तो क्यों आता है, उसका उत्तर दो। आता है मैंने नहीं पूछा, प्रश्न पूछा आपको क्यों आता है। लाए हैं साथ में, वो लाए, आपने उत्तर दिया तो प्रश्न भी किया, क्रिया अवतार का है कि पिछले, तो क्यों प्रश्न किया। नेक्स्ट प्रश्न इसलिए किया कि उसको हम कम कर सकते हैं क्या। अभी वो या मान लो कि अभी तो हमारा एक जन्म में मोक्ष होने वाला नहीं है, बहुत जन्म में जन्म निकलेंगे। व्यवहार में जो तकलीफ आती है विचारों की वजह से हम किसी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। इस भाव में अच्छे विचार होंगे तो नेक्स्ट बर्थ में उसका कुछ सॉल्यूशन भी अच्छी तरह से निकलेगा। नेक्स्ट बर्थ में, ये बर्थ में तो जो लेके आए वो तो हो ही जाएगा, लेकिन एक जन्म में तो हमारा मोक्ष होने वाला नहीं है, बहुत जन्म में जन्म लगेंगे। संसार में ही रहने का है, संसार की क्रियाएं आएंगी, संसार के ही उसको क्रियाओं का समाधान मन से, विचार से, बुद्धि से करना पड़ेगा। तो ऐसा इस जन्म में कैसा करें कि नेक्स्ट बर्थ में या आने वाले बर्थों में उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से हम निकाल सके। नेक्स्ट बर्थ में अपना सॉल्यूशन ये बर्थ में कैसे निकाल सकते हैं। तुम्हारा प्रश्न क्या है नहीं समझ में आता है। मेरा आपको अभी की बात करनी है, नेक्स्ट बर्थ की बात अभी कैसे करेंगे। नहीं, नेक्स्ट बर्थ में हमारे जो विचार अभी हैं वो गए जन्म के भावों के हिसाब से या किसी हिसाब से मुझे पता नहीं है। विचार के आपको पता नहीं है, मगर इतना तो पता है ना कि वो अपने आप आते हैं अपनी मर्जी के बिना। हाँ बराबर। मतलब अगर हमारी मर्जी के बिना आते मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है, बराबर। और हमारा कंट्रोल नहीं है तो किसी का तो कंट्रोल होना चाहिए ना। किसी का होगा, मतलब कुदरती रचना। हाँ, कुदरती रचना। और कुदरत क्यों देती है। हाँ, कुदरत देती होगी किसी कारण, कुछ कॉज तो हो नहीं। मैं आपको प्रश्न करता हूँ क्यों देती है हमको विचार, कोई हमको cause- नहीं करना है। कोई कॉज किया तो होगा। बात हो गई नहीं फिर बात में। तो मैंने पहले सिंपल बताया कि पिछले अवतार के कर्मों के आधार से, मानसिक कर्मों के आधार से विचार आते हैं। इतना लंबा करने की क्या जरूरत है। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो मन नहीं आ गया, मन आ गया। मैं वही बोल और रहा हूँ। कुदरती रचना का मतलब कॉज की इफेक्ट। बराबर। फिर इतना गुचवाड़ा पैदा करने की क्या जरूरत है। निचौड़े का प्रश्न नहीं था कि हम ये जो पैदा होते हैं विचार, वो किसी भाव के हिसाब से पैदा होते हैं कि कोई कर्म के हिसाब से पैदा, किस हिसाब से पैदा, कि ये जन्म में ऐसे विचार रखे या ऐसे भाव करके नेक्स्ट जन्म में जो है अच्छे विचार है। जो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक आदमी पॉजिटिव विचार कर सकता है, एक आदमी नेगेटिव विचार कर सकता है, बरोबर। तो पॉजिटिव वाले ने ऐसा क्या किया होगा उसको पॉजिटिव विचार आते हैं, नेगेटिव वाले ने ऐसा क्या किया होगा तो उसको नेगेटिव विचार आते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो विचार जिसको भी आते हैं वो भी उसका उदय कर्म ही है। जैसा ज्ञान दर्शन है वैसा ही उनका विचार होगा। पुराने तो वैसा होगा जो भर के लाए, और नया वैसा होगा जैसा ज्ञान दर्शन है। और नया जो ज्ञान दर्शन वाला भरेगा उसमें भी अज्ञान होगा तो वही विचार भरेगा और वही विचार नेक्स्ट बर्थ में ही निकलेगा। तो ऐसा क्या भरेंगे पॉजिटिव विचार आए, इसके लिए तो विज्ञान है। विज्ञान से तो आप ऐसा समझते हैं कि वैनिश हो जाएंगे, कर्म बदलेंगे नहीं। लेकिन हम एक क्षण जो है, जो क्रियाएं होती है, जो कोई भी विचार आते हैं, हम एट अ टाइम सारे विचारों को हम वो विज्ञान अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे माइन्यूटली मतलब 1.001% हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी विचार ऐसे ही निकल जाते हैं, उसमें हम संलग्न हो जाते हैं, उसके साथ बन जाते हैं, हम भाव हो जाते हैं, जो भी हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, हम इतना वो अप्लाई कर नहीं सकते। 0.00001 अप्लाई होता है। बाकी विज्ञान समझते हैं, समझ में आता है, लेकिन अप्लाई 0 है। तो हम ऐसे क्या विचार ऐसे कौन से आए हमारे मन में, या ऐसे कौन से भाव आए जो हम नेक्स्ट भाव में, तो एटलीस्ट ये जो विज्ञान अप्लाई हो, लेकिन भाव विचार तो अच्छे आए हमें। मेरे कहने का विचार तो एटलीस्ट अच्छे आए, बाकी अप्लाई होगा, कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अप्लाई करने की कोशिश भाव करते हैं, लेकिन विचार गलत होंगे, गलत लोगों के साथ अटैच हो जाएंगे, तो ये भी जो भी होगा वो भी निकल जाएगा। एटलीस्ट अच्छा माहौल में तो रह सके। यानी कहने का मतलब जो आपका जो दृष्टिकोण है
वो दृष्टिकोण धार्मिक या सामाजिक है? क्या है? आध्यात्मिक नहीं है। नहीं, मैं पहले बोला पॉजिटिव। और धार्मिक के अंदर या तो सामाजिक के अंदर जो भी बात होगी वो बात तो रिलेटिव सत्य ही होगी, और रिलेटिव सत्य में ये कहेंगे बुरे विचार नहीं करने चाहिए, अच्छे विचार करने चाहिए, और बुरे विचार के लिए प्रायश्चित करने चाहिए। अगर अच्छे विचार नहीं कर सकते तो शक्ति मांगो। ये सब रिलेटिव सत्य में धर्म के अंदर बताते हैं धर्मगुरु। ये उत्तर उसमें आ जाते हैं। वो कोई भी धर्मगुरु को पूछेंगे तो यही उत्तर देंगे कि आपको बुरा नहीं करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। ये तो पहले कहेंगे। फिर आप कहोगे कि मेरे को बुरा नहीं करना है, फिर भी आता है तो क्यों? तो बोला कोई बात नहीं, बुरे विचार के लिए प्रायश्चित करो और अच्छे विचार करने के लिए प्रयत्न करो, और प्रयत्न से नहीं आता तो सत्य मांगो। और कोई ऑप्शन नहीं है उत्तर का। इसको मिटाओ, इसको करते रहो, और नहीं कर सकते तो सत्य मांगो। ये 3 से चौथा ऑप्शन धर्म के अंदर, समाज के अंदर नहीं है किसी के पास। ओनली 3 ऑप्शन। क्या बताया? पहला, बुरा विचार नहीं करो, अच्छा करो। ये पहला बताएंगे सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति। बुरा नहीं करो, अच्छा करो, नंबर 1। दूसरा, अगर बुरा आता है तो उसके लिए प्रायश्चित करो। अच्छा नहीं कर सकते तो उनके लिए शक्ति मांगो। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक गुरु के पास कोई उत्तर नहीं हो सकते। शब्द कोई भी हो सकते, उत्तर इसी में समा जाएगा। आना बेटे, इसके लिए दादा ने बहुत एक सिंपल बात एक शब्द में बताया कि विचार એને શું કીધું? नपुंसक कह दी दो। गुजराती नपुंसक हिंदी करो। हिंदी को क्या कहते हैं? नपुंसक में શું કહેવાય? हाँ, तो ये विचार जो બધા આવે છે, जो आ रहे हैं ना, उसको पूरा एक ही शब्द में कहा है, विचार पूरा नपुंसक છે। હવે એમાં શું કહેવા માંગે છે મને બી થોડું તે વિશે સમજ નહોતું પડ્યું મેં જ્યારે વાંચેલું, એટલે આજે આ પ્રશ્ન આવ્યો ને એટલે હું તમને આ ફરીથી પૂછી લેવા માંગુ છું। मैंने समझा आप उसके प्रश्न का उत्तर नहीं, ये ऐसा आया था तो मुझे ये विचार की बात है। मैंने को ऐसा लगा कि चलो फिर मैंने जो एक्सप्लेन किया, ये भाई के प्रश्न का एक्सप्लेन किया, वो शायद उसको नहीं समझ में आया, तो आप दादा की बात ऐसी बताएंगी कि उसको समाधान मिल जाएगा। यही इसीलिए मैंने कहा अगर है तो अच्छी बात है, इसमें क्या बड़ी गलती है, हम तो स्वीकार करेंगे ना। तो कहने का मतलब ये है, नपुंसक का मतलब होता है उसके अंदर न पुरुष है न स्त्री है, उनके अंदर पावर ही नहीं है कोई, ये कहने का मतलब है। और तुम पावर वाले और बिना पावर वाले से डरते हैं, यही तुम्हारी कमजोरी है, यही तुम्हारी अज्ञानता है, यही तुम्हारी रॉन्ग बिलीफ है। और रॉन्ग बिलीफ को तोड़ने के लिए आपको यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस चाहिए कि भी विचार खुद ही आके चले जाते हैं। अगर वो विचार ऑटो मोड है तो मैं इसमें इन्वॉल्व क्यों होगा? भले आते हैं, मेरे को प्रश्न नहीं क्यों आता है, मगर मैं एक नहीं लाखों विचार भी अगर आते हैं तो देखने में क्या तकलीफ है? अगर देखना नहीं पाता तो कोई बात नहीं, बिना देखे भी चले गए तो तकलीफ क्या है? अपने को लाना तो है नहीं कि चलो भी 100 रुपये 100 मेरे पास चीज थी 2 चुरा लिया, ऐसा तो है नहीं। चले गए तो चले गए, राज्य तो नहीं हुआ ना, फिर क्या तकलीफ है? बोलते नहीं है। अगर मैं यहाँ विंडो पे खड़ा हूँ और इतने सारे वाहन भीड़ में जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, फिर मैंने देखा ये स्कूटर अच्छा है, ये कार अच्छी है, ये मैंने देखा, तो उसके साथ साथ हजारों वाहन अपने आप चले गए मेरी नजर के सामने, मगर मैंने देखा तो क्या नुकसान हो गया? नुकसान क्या हो गया? बोलते नहीं है। ये नुकसान नहीं हो तो विचार नहीं देखा तो नुकसान क्या हुआ? हमको इंटरेस्ट कहाँ है? हमको तो एक भी विचार देखना नहीं है, उसका एक ही टाइटल कुदरती एक विचार है या लाख विचार है, टाइटल क्या बताया? फिर हम इसको अलग अलग आइडेंटिफाई क्यों करेंगे? वाह, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं,
ये पसंद है, ये नापसंद है, ये काम का है, ये काम का नहीं है। क्यों पसंद करेंगे? वाई? जब हम मन वचन काया से ही मुक्त रहना चाहते हैं और मुक्तता की अनुभूति करना चाहता है, इसीलिए मैंने कहा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना देखो। फिर आप उसमें अपनी बुद्धि से डिवीजन क्यों बनाते हो और क्यों पजल खड़ा करते हो? वाई? और फिर वही पजल में हम फंस जाते हैं। यही तो तकलीफ होती है। क्यों आप ऐसा करते हो? मैंने पहले भी कहा, अध्यात्म विज्ञान के अंदर रिलेटिव सत्य को टच नहीं करना है, बदलना नहीं है, करेक्शन नहीं करना है, माफी मांगना नहीं है, सुधारना नहीं है, सिर्फ मुक्त ही रहना है, नो डिटेलिंग। ये कितनी बार कहा है? हजारों बार कहा है। फिर कहूंगी कि अच्छे विचार क्यों नहीं आते, बुरे क्यों आप एंटर होते हैं? हम इस दुनिया से मुक्ति पाना चाहते हैं या मन वचन काया को सुधारना चाहते हैं? फर्स्ट यू डिसाइडेड। अगर सुधारना चाहते हैं तो रिलेटिव सत्य को फॉलो करो, मुक्त रहना चाहते हो तो सनातन सत्य को फॉलो करो। इसमें मना कौन करता है? कौन मना करता है? आपको तो डिसाइड करना पड़ेगा मेरे को कौन से रास्ते पर जाना है। सामाजिक रास्ता भी सही है, धार्मिक रास्ता भी सही है और आध्यात्मिक रास्ता भी सही है। चूज एनीवन, कोई गलत नहीं है। मगर कौन से रास्ते पर आपको? आध्यात्म में भी जाना है, फिर सामाजिक रास्ते पर भी जाना है, धार्मिक रास्ते पर भी जाना है, तो कैसे पॉसिबल होगा? तीन रास्ता है, मगर तीन रास्ते पर गाड़ी कैसे चला सकते हैं? एक ही रास्ते पर जाएगी ना। बोलिए। स्वामी जी, मेरा एक पजल है। ये प्रकृति से दूसरे प्रकृति के साथ मारा मारी हो गई, ठीक है। अभी मारामारी में क्रोध हो गया और दूसरे कषाय भी हो गए, ठीक है। मन वचन का ऐसे जो भी खराब होना है वो सब हो गया, ठीक है। अभी वो समय पे मैंने देखा ये सब कुदरती रचना है, ठीक है। लेकिन एट दैट मोमेंट मेरा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा उसमें जुड़ा कि न जुड़ा, उसका बैरोमीटर कैसे मतलब नाप सकते हैं कि मैंने मेरा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा ये कुदरती ये जो हो रहा है उसमें वो जुड़ गया कि नहीं जुड़ा, वो कैसे पता चलता है? नहीं, अगर कुदरती रचना देखा, वो किसने देखा? वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा। तो फिर क्या प्रश्न हुआ फिर? नहीं, उस तो लाइव मतलब जो हो रहा है उसको देखा, लेकिन कषाय डिस्चार्ज में हो रहा है। डिस्चार्ज की बात करते हैं, पुरुषार्थ की बात करते हैं? मैं पुरुषार्थ की बात कर रहा हूँ। और पुरुषार्थ में तो आपने कहा कि प्रतिष्ठित आत्मा ने कुदरती रचना देखा जी, फिर क्या प्रश्न है? तो बस दैट्स ऑल। तो और क्या करना है? बस दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। और क्या करना है? डिस्चार्ज कषाय हो गए, इतने ही हो गए, कुछ भी नहीं। आपको वाइफ ने कहा चाय पीना है नहीं, शांति से बैठो। पत्ती है कि नहीं, चाय है कि नहीं, दूध है कि नहीं, पानी है कि नहीं, गैस है कि नहीं, वो पूछने की जरूरत? वो कहता है चाय पीना है नहीं, शांति से बैठो, मैं लाके आता हूँ। फिर आपका और कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। जब आपको देखा, आपने देखा कुदरत रचना है, फिर क्यों आप डिटेलिंग? कुदरत का काम है क्या आपका काम है? अच्छा विचार करना, बुरा विचार करना किसका काम है? अच्छी क्रिया करवाना, बुरी क्रिया करवाना कुदरत का ही तो काम है। अच्छी जबान बोलना, गलत बोलना, बुलवाना किसका काम है? कुदरत का। तो कुदरत के काम में हम क्यों दखल करते हैं? जब कुदरत खुद कहते हैं कि तुम्हारे मन वचन काया जो वर्तमान में निकल रहा है उनके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि हर संजोग में ही आपको देता हूं। हाँ, आपने जो बीज डाले थे उसका ही फल है, उसका ही फल। हाँ, मगर ये शरीर की गलती नहीं है। यस और नो? यस। मगर प्रतिक्रमण तो उसको ही करने का, जिसे गलती नहीं है उसको ही बोलते नहीं है। यस और नो? उनकी गलती नहीं है फिर भी प्रतिक्रमण तो उसको ही करना है।
नहीं, कितनी भ्रांति है, बताओ तो सही। उसके पास कराना, ऐसा बोलते हैं। उसके पास कराना गलती नहीं है, फिर भी कराने का। नहीं ऐसा 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 आज तक समझे थे। नहीं, आज तक समझे वो छोड़ दो ने भाई, मैं कहाँ मना करता हूँ, इट इज ओके। जब इतना सिंपल आपको मिलता है तो व्हाई यू क्रिएट द पजल अननेसेसरीली, मैं ये कहता हूँ। ऐसे समझाया गया था कि ये प्रकृति का कंट्रोल आप पे है, तो आप उसके पास प्रतिक्रमण करें, ऐसा हमको आज तक हमको समझाया गया था। बराबर है।